A very good morning to all my students. तो कैसे हैं सब लोग? Here I am with a new topic that is congruence of triangles. My name is Guleen and I teach you mathematics for class 7th, right? तो आज congruence of triangles में हम करेंगे इसके basics and कुछ important NCERT questions and then some other extra questions also, right? So let's move forward. I hope all of you have had your breakfast and ready to learn, right? चलो हमारी लास्ट क्लास में हमने किया था पेरीमीटर एंड एरिया का पार्ट 1. सो आई होप आप सबको उसमें कोई डाउट नहीं है. यू आर क्लियर विद द कॉन्सेप्ट्स एंड दोज हु हैव स्टिल नॉट सीन दिस वीडियो कैन सी दिस वीडियो एज इट वाज स्ट्रीम्ड yesterday at 2 p.m. राइट. चलो टेबल ऑफ कंटेंट्स. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न व्हाट इज मेंट बाय कॉन्ग्रुएंस, द क्राइटेरियाज. क्राइटेरियाज की स्पेलिंग गलत है. Criterias of congruence and practice questions of NCERT, right? And to the kids who are new in the class, बहुत सारे बच्चे अभी 6th से 7th पे मूव ऑन हुए हैं. तो जो मुझे ऑलरेडी नहीं जानते हैं, my name is Gurleen Singh. I'm a postgraduate in economics with maths and I have 1+ years of teaching experience through various online and offline modes. Also, I'm qualified for assistant professor through the UGC NET exam. मूविंग फॉरवर्ड, ये है मेरा स्केड्यूल, लाइव स्केड्यूल. मंडे से संडे आई मीट यू एवरी डे लाइव एट 2 p.m. ठीक है. एंड अनलर्न चैनल अनलर्न 6 to 8 पे मंडे से थर्सडे 4 p.m. एंड देन फ्राइडे से सैटरडे एट 5 p.m. ठीक है. सो यू कैन ज्वाइन मी लाइव एट दीज टाइमिंग्स एवरी डे. ओके. So what's new with Unacademy? It's Unacademy Ask a Doubt feature, ठीक है, which is totally free of cost है ये feature. ठीक है. आपको कहाँ पे मिलेगा? You will get this feature on the app, on the Unacademy app. ठीक है. तो उसको डाउनलोड कर लो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है ऐप को डाउनलोड करना. ठीक है. फिर आपने एक बार अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर ली एंड इफ यू आर अ न्यू यूजर दे विल आस्क यू फॉर अ कोड बिफोर प्रोसीडिंग. तो वो कोड है SPGSS10. ये कोड पुट इन करना है. ठीक है. अपनी प्रोफाइल पे when then you have to click on ask a doubt feature. ठीक है. then take a picture, choose from the gallery, take the picture of your doubt. ठीक है. for now the this option is for maths and science के सारे doubts आपके solve हो जाएंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एंड एट द अर्लीस्ट. ठीक है. अपने डाउट की फोटो लो, उसको क्रॉप आउट करना है एंड यू हैव टू सेंड इट. ठीक है. एंड देन यू विल गेट अ वीडियो सोल्यूशन फॉर इट एज सून एज पॉसिबल. ठीक है. सो maybe we'll soon launch it for other subjects also, but for now सबके एग्जाम्स आ रहे हैं. आई नो यू पीपल हैव अ लॉट ऑफ डाउट्स. ठीक है. तो अगर लाइव क्लासेस में क्लियर नहीं हो रहे हैं, आप अनअकैडमी आस्क अ डाउट फीचर पे सब क्लियर कर सकते हो. ठीक है. Lastly, we have Phoenix 2.0. What is this? It is India's best educator accelerator program. So we are looking for India's next top educators and we seek your help in finding us, your help in finding them. ठीक है. तो अगर आप किसी को जानते हैं जिनको पढ़ाना बहुत पसंद है, who is a very great teacher, very passionate for teaching, creative, ठीक है, and wants to get associated with Unacademy, तो उनको क्या करना है? They have to fill the form given in the description बॉक्स. ठीक है. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म है, उनको बोलना वो फॉर्म फिल कर दे एंड द अनअकैडमी टीम विल रीच आउट टू देम. ओके. सो इट्स फर्स्ट टाइम एवर इन इंडिया. इन डेट फेज वाइज ट्रेनिंग होगी. experienced iconic educators will be training them, best industry resources will be provided, so it's a very good career advancement opportunity. So do let us know if you know anyone. Okay. So now we will be beginning with our chapter that is congruence of triangles. So what is congruence? When two figures are congruent, it means that they coincide with each other when superimposed. Superimposed होता है एक के ऊपर दूसरे को रखोगे तो वो एक दूसरे के पे अच्छे से ओवरलैप हो जाएगी. ठीक है. They will cover each other completely. राइट. उसका मतलब होता है कोइंसाइड करना कि अच्छे से ओवरलैप हो जाएंगे. नथिंग एक्स्ट्रा विल बी लेफ्ट. ठीक है. लाइक आई ऑलवेज से the palms, my hands, they will completely overlap each other. ठीक है. इस तरह बहुत सारे एग्जाम्पल्स है. यू कैन सी टू बुक्स विच आर ऑफ द सेम सब्जेक्ट, सेम पब्लिशर, सेम क्लास. ठीक है. आपके और आपके पार्टनर की हिंदी की बुक, मैथ्स की बुक कंप्लीटली ओवरलैप हो जाएगी एक दूसरे के ऊपर. दैट मीन्स दे आर कॉन्ग्रुएंट, दे आर एग्जैक्टली द सेम. ठीक है. तो आई होप आपको मीनिंग समझ आ गया है. एंड जो कॉन्ग्रुएंस का सिंबल होता है उसको हम ऐसे बनाते हैं. इफ टू थिंग्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, आई विल पुट दिस सिंबल. ठीक है. लाइक फिगर ए
इज कॉन्ग्रुएंट टू फिगर बी। ठीक है, अगर मुझे फिगर ए फिगर बी दिखाना हो, अगर ये मेरा फिगर ए था, ठीक है, सेम मेजरमेंट्स वाला मेरा फिगर बी है, एंड आई हैव टू टेल देम कि ये बिल्कुल ही सेम है, सो आई विल पुट दिस साइन, दिस इज द साइन ऑफ कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, तो आई होप इट्स क्लियर व्हाट इज कॉन्ग्रुएंस। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, व्हाट इज कॉन्ग्रुएंस ऑफ लाइंस। तो मैंने अभी बताया कि जो चीज एग्जैक्टली सेम होगी, तो जो एक लाइन है उस लाइन को हम कैसे सेम बता सकते हैं, अगर उसकी सेम लेंथ होगी, सेम मेजरमेंट होगी, तो अगर मैं, इफ इट्स फिजिकली पॉसिबल फॉर मी टू पिक अप दैट लाइन एंड पुट इट ऑन द अदर लाइन, वो कंप्लीटली एक दूसरे को कवर कर लेंगी, एकदम से ओवरलैप कर लेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो दैट लाइन ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू लाइन एक्स वाई। ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट है क्यों, बिकॉज इट इज विजिबल दैट दे आर ऑफ द सेम लेंथ। ठीक है, इफ दिस इज 10 सेंटीमीटर, this is also 10 centimeter, and I can say that line segment AB is congruent to line segment XY. ठीक है, what about in the second figure? In the second figure is it possible? No, ये मुझे clearly दिख रहा है, let me assume it's 5 centimeter और XY AB से बड़ा है। ठीक है, in the second line, so maybe this is 10 centimeter. So अगर उनकी सेम लेंथ नहीं है, so AB is not congruent to XY. So I can't put this sign and I cannot say that these two line segments are congruent. तो जब भी आपको लाइंस या लाइन सेगमेंट की कॉन्ग्रुएंस दिखानी हो, कैसे दिखाओगे, लेंथ सेम होनी चाहिए। ठीक है, लाइन वन डायमेंशनल फिगर है, ठीक है, उसकी सिर्फ लेंथ होती है, विड्थ नहीं होती है, तो अभी हम सिर्फ लेंथ की बात कर रहे हैं, लेंथ सेम होनी चाहिए। ठीक है, ओके, मूविंग फॉरवर्ड, कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल्स। अब एंगल्स कब सेम होंगे, एंगल्स हैविंग द सेम मेजर आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। ठीक है, मेजर को जैसे मैं एम से डिनोट कर रही हूँ, लेट अस नेम दीज एंगल्स पी क्यू आर, ठीक है, एंड ए बी सी। तो मैं कह सकती हूँ मेजर ऑफ एंगल पी क्यू आर, ठीक है, दिस इज पी क्यू आर इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल ए बी सी। ठीक है, दोनों कितने हैं, बोथ आर 55 डिग्री। तो दो एंगल्स कब सेम होंगे, कब कॉन्ग्रुएंट होंगे, ऑब्वियसली जब उनका मेजर सेम है। ठीक है, सो इट डजेंट मैटर कि ये आर्म्स कितनी एक्सटेंडेड है, ठीक है, कौन सी आर्म छोटी है बड़े, यू जस्ट हैव टू लुक एट द एंगल। ठीक है, अगर देखने में अब ये पी क्यू आर बड़ा लग रहा है, बट एंगल का मेजर तो सेम है ना, तो आई विल से एंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए बी सी। तो लाइंस में लेंथ सेम होनी चाहिए, कॉन्ग्रुएंट एंगल्स में मेजर सेम होना चाहिए, राइट। चलो, लेट्स मूव फॉरवर्ड, and if you guys, as I always say, if you have any doubt, ask me in the comment section or in the next live video, and I will be more than happy to solve it. Okay, अब आ जाते हैं हम congruence of triangles पे, which is our main chapter. ठीक है, two triangles are congruent if the following coincide with each other when superimposed. ठीक है, मतलब अगर मैं दो ट्रायंगल्स को एक के ऊपर एक रखूंगी, सारी जो वर्टिसेस हैं, वर्टिसेस क्या होती हैं, जहाँ टू आर्म्स मीट करती है, ये जो एंड पॉइंट्स है, ठीक है, ये वर्टिसेस एक के ऊपर एक रखूंगी तो कोइंसाइड होनी चाहिए। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स मतलब जो सिमिलर साइड्स हैं वो सेम होनी चाहिए, सेम लेंथ वाली। ठीक है, एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो अगर ये ए बी सी है, ठीक है, दिस इज जी एच आई, जस्ट नेमिंग द एंगल्स, तो कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टिसेस क्या है, ठीक है, ए कॉरेस्पॉन्ड्स टू जी, ठीक है, मतलब मैं ए वर्टिस को जी के ऊपर रखूंगी। ठीक है, बी वर्टेक्स को किसके ऊपर रखूंगी, एच, एंड सिंबल ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस इज दिस। ठीक है, और ये सिंबल किसका है, ये कॉन्ग्रुएंस का है, कॉरेस्पॉन्डेंस का ये है कि कौन सी साइड सेम है वो बताने के लिए। ठीक है, फिर है जी इज सी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी वर्टेस इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू आई वर्टेस। ठीक है, फिर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है, तो आप देख सकते हो ए बी विल बी इक्वल टू जी एच, राइट। ओके, इक्वल तो नहीं, कॉरेस्पॉन्ड कर देते हैं, कॉरेस्पॉन्ड करिए, मतलब फिर जब एक के ऊपर दूसरा रखूंगी वो अच्छे से एक दूसरे को कोइंसाइड कर लेंगी, दैट मीन्स दे विल बी इक्वल। ठीक है, बी सी इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू एच आई, ठीक है, एंड ए सी इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू जी आई। ओके, एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सेम, एंगल ए कॉरेस्पॉन्ड्स टू एंगल जी, ठीक है, एंगल एच एंगल बी कॉरेस्पॉन्ड्स टू एंगल एच, एंड एंगल सी कॉरेस्पॉन्ड्स टू एंगल आई। ठीक है, इस तरह से मैंने कॉरेस्पॉन्डिंग तीनों वर्टिसेस, साइड्स एंड एंगल्स बता दिए। नाउ इफ आई हैव टू नेम दिस, आई विल से ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, इज
कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। अब जो नेमिंग है, जो मैं नेम कर रही हूँ ट्रायंगल्स को, वो भी सेम आना चाहिए, ठीक है। ए बी को मैंने बोला इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू जी एच, तो ट्रायंगल जी एच, ठीक है। फिर बी सी इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू एच आई, तो ये एच आई, ठीक है। एंड ए सी इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू जी एच। तो लिखते टाइम भी व्हेन आई एम नेमिंग दीज ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रुएंस को ध्यान में लेना है। लिखते टाइम भी कॉन्ग्रुएंट साइड्स, कॉन्ग्रुएंट वर्टिसेस के हिसाब से ही नेम करेंगे, ठीक है। अब तक तो इट इज इजी, इट मस्ट बी क्लियर टू यू। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द क्राइटेरियाज ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है। देयर आर 4 मेन क्राइटेरियाज दैट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट। सबसे पहला है SSS क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस, ठीक है। ओके, if the 3 sides of a triangle are equal to the 3 corresponding sides of another triangle, then the triangles are congruent. मतलब all 3 sides should be equal to each other, ठीक है। should be equal to the other triangle की sides, ठीक है। all 3 sides should be equal, ठीक है। now this is 5, 5 and 6. देखने में maybe these triangles are not congruent to you, ठीक है। but if I tell you कि ये 6 सेंटीमीटर है, ये 5 है और ये भी 5 है, तो आई कैन सी कि ऑल 3 साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। ए बी सी एंड लेट्स नेम इट पी, ओके, पी क्यू एंड आर। अब मुझे इस तरह से इनको नेम करना है कि कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स, जैसे पी और ए, पी को ए के ऊपर रखूंगी, ठीक है, क्यू को बी के ऊपर रखूंगी एंड आर को सी के ऊपर रखूंगी, ठीक है। तो इससे आपको कॉरेस्पॉन्डेंस क्लियर हो जानी चाहिए। आई विल नेम देम एज ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर वाई, ठीक है। अब मेरे को रीजंस लिखने, आई नीड 3 थिंग्स टू मेक दीज कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। आई विल से दैट ए बी इज इक्वल टू व्हाट, पी क्यू, ठीक है। और इनकी लेंथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर, इट्स गिवन टू मी। सेकेंड साइड में इक्वल बोल सकती हूँ दैट ए सी, ठीक है, इज इक्वल टू पी आर, ठीक है। ये देखो ए सी है और पी आर है, सेम पोजिशनिंग है, इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। एंड लास्टली आई हैव बी सी इज इक्वल टू क्यू आर विच इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब मेरे पास 3 साइड्स इक्वल है, तो SSS क्राइटेरिया लग रहा है एंड दीज 2 ट्रायंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, राइट। तो आप देखोगे अगर एक ट्रायंगल में आपको 3 साइड्स इक्वल दिख रही हैं एक ट्रायंगल की दूसरे ट्रायंगल के साथ, देन यू कैन प्रूव दैट दीज 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ओके। सो व्हाट इज द नेक्स्ट क्राइटेरिया, इट इज SAS रूल, ठीक है, साइड एंगल साइड, ठीक है। नाम से पता लग रहा है, आप लोग अब तक पढ़ भी चुके होंगे, साइड एंगल साइड। इसमें क्या है, 2 साइड और बीच वाला एंगल इक्वल होना चाहिए टू दी अदर ट्रायंगल्स 2 साइड्स एंड इंक्लूडिंग एंगल, ठीक है। तो मैं कह सकती हूँ इफ आई से दैट ए बी सी, ठीक है, पी क्यू आर, आई कैन से दैट ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ठीक है, एंड बी सी इज इक्वल टू क्यू आर। नाउ अगर आपको यहाँ दिख रहा है कि 90 डिग्री है, ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल ले सकते हैं, बट कैन आई प्रूव दैट इट इज कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि अभी तो क्या है, एक साइड इक्वल है, एक साइड इक्वल है और एक एंगल इक्वल है, बट ये क्या बन रहा है, साइड साइड एंगल बन रहा है। मुझे SAS चाहिए, मतलब इंक्लूडेड एंगल सेम होना चाहिए। आई वॉन्ट दैट एंगल B शुड बी इक्वल टू एंगल Q, देन आई विल से दैट AB इज इक्वल टू PQ साइड, ठीक है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q एंड BC इज इक्वल टू QR। तो मेरे पास SAS है, एक्सक्यूज मी, SAS क्राइटेरिया है, सो आई विल नेम देम दैट ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR, ठीक है, 2 साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल। Moving on, we have ASA criteria. If the 2 angles and the included side of a triangle are equal to corresponding angles and the included side. अब इसमें उल्टा है, उसमें SAS था, इसमें अब हमें 2 एंगल सेम चाहिए एंड इंक्लूडेड साइड सेम होनी चाहिए, ठीक है। सो दिस इज XYZ, ठीक है, ये है PQR। नाउ 2 एंगल्स, मान लो एंगल X इज इक्वल टू एंगल P, ठीक है, एंड एंगल Y इज इक्वल टू एंगल Q। अब जो बीच की साइड कौन सी है, आई ऑलरेडी हैव एंगल X इज इक्वल टू एंगल P एंड एंगल Y इज इक्वल टू एंगल Q, ठीक है। इंक्लूडेड साइड इज XY एंड PQ,
So I can write that xy is equal to PQ. नाउ आई हैव एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल हो गया, ये बीच की इंक्लूडेड साइड है, दोनों एंगल्स के बीच की, दिस इज साइड एंड एंगल. सो बाय ASA क्राइटेरिया ट्रायंगल XYZ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR. ठीक है, अब अगर मेरे पास XY की जगह XZ इज इक्वल टू PR गिवन होता, कैन आई प्रूव इट, कैन आई प्रूव दैट इट इज राइट, कि कैन आई प्रूव दैट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. वेट, ये इक्वल नहीं गिवन मेरे पास, ठीक है, दिस इज व्हाट आई एम गिवन. अब मेरे पास एंगल है, ठीक है, और ये वाली साइड है, ठीक है, दो एंगल्स और एक साइड इक्वल है, तो मेरे पास कुछ ऐसे बन रहा है एंगल एंड साइड, क्योंकि साइड जो है वो इंक्लूडेड साइड नहीं है, वो दूसरी साइड है. नाउ दिस इज ऑल्सो क्राइटेरिया, ठीक है, क्यों, बिकॉज इस क्राइटेरिया से बाय एंगल साइड आई कैन डिराइव ASA ऑल्सो. ठीक है, कैसे डिराइव कर सकती हूँ, क्योंकि देखो एंगल सम प्रॉपर्टी पता है सबको, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, दैट ऑल थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल विल बी इक्वल टू 180 डिग्री. तो अब अगर x और p इक्वल है, ठीक है, y और q इक्वल है, कैन आई से दैट z विल बी इक्वल टू r. ऑब्वियसली अगर दो एंगल्स ऑलरेडी इक्वल है, ठीक है, ये 30 है, ये 30 है, ये 60 है, दिस इज 60, ठीक है, 60 70 80 90, तो ये जो बचा हुआ है तो ये दोनों साइड 90 होगा, क्योंकि जो मुझे सम है वो तो 180 चाहिए, दिख 90 नहीं रहा है, बट आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल. ठीक है, सो दिस इज ऑटोमेटिकली इक्वल टू ईच अदर. नाउ कैन आई गेट ASA. अब मेरे पास ASA क्राइटेरिया फिर से बन जाता है ना. सो इन सम बुक्स वी आर गिवन कि AAS भी एक क्राइटेरिया है, बट AAS क्राइटेरिया क्यों क्राइटेरिया, क्योंकि उससे मैं ASA दोबारा से प्रूव कर सकती हूँ बाय प्रूविंग द थर्ड एंगल इक्वल. ठीक है, सो इफ यू आर गेटिंग इट दैट्स फाइन, अदरवाइज ASA क्राइटेरिया तो याद रखो. ओके, सो लास्ट इज आर RHS क्राइटेरिया. If the hypotenuse क्या है, it is the biggest side in a right angle triangle and it is opposite to the 90 degree वाला angle. ठीक है, if the hypotenuse and one side of a right angle triangle are equal to the hypotenuse and one side of the other right triangle, then the triangles are congruent. ठीक है, ABC triangle है और यहाँ पे XYZ triangle है, तो इसमें मुझे पता है दैट एंगल B will be equal to एंगल Y. क्यों, क्योंकि दोनों 90 डिग्री एंगल है. RHS का क्या मतलब है, राइट एंगल सेम होना चाहिए, दिख रहा है, ठीक है, हाइपोटेन्यूज की लेंथ सेम होनी चाहिए, AC शुड बी इक्वल टू XZ, राइट, एंड थर्डली क्या चाहिए, कोई भी एक साइड, इट कैन बी योर परपेंडिकुलर ऑल्सो या फिर बेस भी हो सकता है, ठीक है, ईदर ऑफ दीज टू. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग दैट AB इज इक्वल टू XY, गिवन है ये सब मुझे, ठीक है, or I can also, if I even have that BC is equal to YZ, then also either of these will work, and I can say that using RHS criteria triangle ABC is congruent to triangle XYZ. ठीक है, तो ये थी आपका क्विक रिकैप अबाउट ऑल द क्राइटेरियाज दैट व्हाट इज कॉन्ग्रुएंस. ठीक है, जो न्यू बच्चे भी आए हैं, आई होप आप लोगों को समझ आ गया थोड़ा थोड़ा, नहीं तो हम इन डेप्थ करेंगे नेक्स्ट मंथ से. ठीक है, एंड दोज हु आर रिवाइजिंग, आई होप यू डोंट हैव टू रिवाइज इट अगेन एंड इट्स एब्सोल्युटली क्लियर टू यू. ओके, जस्ट अ सेकंड. Okay, let's move forward then. Complete the following statements. Now, based on what I just taught you, start answering these. Okay. And I know we are not live. I can't ask you कि देखो किसने सबसे पहले आंसर दिया है, but it is very easy. Okay, two line segments are congruent if. ठीक है, अभी मैं बताया है two line segments congruent कब होंगी, if they have the same length. ठीक है, लेंथ सेम होनी चाहिए. अगर दोनों 10 सेंटीमीटर है, दोनों ही 20 सेंटीमीटर है, तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगी क्योंकि वो एकदम से ओवरलैप हो जाएंगी. ठीक है, ओके. अमंग द कॉन्ग्रुएंट एंगल्स वन मेजर हैज 70 डिग्री. तो मुझे ऑलरेडी गिवन है कि जो दो मेरे एंगल है, एंगल 1 एंड एंगल 2, ठीक है, वो दोनों कॉन्ग्रुएंट है. दैट एंगल 1 इज ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2, एंड इफ एंगल 1 इज 70 डिग्री, द मेजर ऑफ एंगल 2 इज हाउ मच. ऑब्वियसली ये भी 70 डिग्री होगा
क्योंकि वो कॉन्ग्रुएंट होने के लिए एक ही कंडीशन थी कि दोनों के मेजर सेम होने चाहिए. ओके, दिस इज योर एनसीईआरटी क्वेश्चंस. When we write angle A is equal to angle B, we mean, हम क्या मीन करते हैं, हम कहते हैं जो मेजर है एंगल A का दैट इज इक्वल टू द मेजर ऑफ एंगल B. ठीक है, कि दे बोथ हैव दिस सेम डिग्रीज है, लाइक 50 डिग्री है दोनों का. Just taking an example that angle A is equal to angle B is equal to 50 degree, that they both have the same measure, right? So let's move forward. Give any two real life examples of congruent shape. So I want you to write it in the comments, ठीक है? But let's discuss one or two. Like I already said in the starting कि अगर तुम्हारे और तुम्हारे पार्टनर की सेम सब्जेक्ट की सेम क्लास की बुक्स बाय द सेम पब्लिशर विल बी कॉन्ग्रुएंट, तुम दोनों की एनसीईआरटी की मैथ्स की बुक विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर. ठीक है, देन इफ यू हैव बिस्किट्स, ठीक है, किसी सेम कंपनी के बिस्किट्स है, एक पैकेट में जितने बिस्किट्स है सेम शेप और सेम डिजाइन के होते हैं यूजुअली. ठीक है, एटलीस्ट दे हैव द सेम मेजरमेंट्स. ठीक है, तो वो कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं. देन इफ यू सी टू 1 rupee coins, ठीक है, 2 coins ऑफ सेम डिनोमिनेशन. ठीक है, अगर 2 rupee के दोनों 2 rupee होने चाहिए, राइट. सेम डिनोमिनेशन, डिनोमिनेशन होता है कि कितने रुपए के कॉइन है. ठीक है, ठीक है. देन वी व्हाट डिड वी डिस्कस, सेम बिस्किट्स ऑफ सेम पैकेट, राइट. 2 आइडेंटिकल ट्विंस, है ना, जो एकदम सेम दिखते हैं. देन अपार्ट फ्रॉम दैट आई टोल्ड यू हैंड्स ऑफ सेम पर्सन. ठीक है, बुक्स सेम क्लास एंड सब्जेक्ट सेम पब्लिशर, मतलब सेम कंपनी की. ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टूड एंड यू कैन ऐड एंडलेस एग्जांपल्स टू दिस लिस्ट. ओके, चलो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ ट्रायंगल ए बी सी, लेट्स नेम इट ए बी सी, ठीक है, इज कॉन्ग्रुएंट टू एफ ई डी under the correspondence that ABC, ठीक है, is corresponding to FED, right? Write all the pairs, write all the corresponding congruent parts of triangles. ठीक है, सो यू कैन सी थोड़ा सा साइज में गड़बड़ है, बट वी आर गिवन कि वो कॉन्ग्रुएंट है तो दे वुड बी ऑफ द सेम साइज. अगर कॉरेस्पॉन्डिंग है तो वो सेम साइज के होंगे, राइट. सो वी हैव टू राइट ऑल द कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स. तो लेट्स बिगिन with the sides and angles. ठीक है, so sides लिखते हैं पहले. AB, side AB is corresponding to FE. ठीक है, नेमिंग से भी पता लगना चाहिए, AB is FE. ठीक है, ये इसका क्या मतलब है, लाइन सेगमेंट, मतलब जिसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं. तो वी नो ट्रायंगल इज मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स ओनली. ठीक है, फिर है BC इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू ED. ठीक है, BC and ED. And what do we have left? AC is corresponding to DF. AC is corresponding to DF. तो ये हमने तीनों साइड्स लिख दी. अब तीनों एंगल्स क्या होंगे, एंगल A corresponds to एंगल F. ठीक है, then we have angle B corresponding to angle E and angle कौन सा रह गया, हाँ, एंगल C corresponds to angle D. तो ये है सारे corresponding parts and all the corresponding angles and vertices. You can see angle A, vertex A is corresponding to vertex F, B and E, C और D. ठीक है, तो अब तुम्हें नेमिंग में गड़बड़ नहीं करनी है क्योंकि इसमें से MCQ क्वेश्चंस आएंगे and then you don't have to lose marks over it. Okay. If triangle DEF, ठीक है, is congruent to triangle ABC, write the part of ABC ये नहीं है, write the part of ABC that corresponds to angle E. ठीक है, अब हम कैसे पता करेंगे कि एंगल E के पास कौन सा जाता है. मेरे पास फिगर नहीं गिवन बट आई नो कि दोनों कॉन्ग्रुएंट है और उनकी नेमिंग कैसे करते हैं. तो एंगल E की कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होगा, एंगल C. ठीक है, EF के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, साइड CA. ठीक है, ओके. देन वी हैव ZF. देयर इज नो ZF.
आई जस्ट राइट इट, दिस इज एंगल ई एफ, ई एफ होगा, ठीक है। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा है, देखो ई एफ है तो एंगल क्या होगा, सी, these are the sides not the angles, typing mistake, so forgive me, हाँ चलो ठीक है, ये क्या है, ई एफ के कॉरेस्पॉन्डिंग है सी ए, चलो डी एफ देखते हैं, ठीक है। डी एफ के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सी साइड है, ये है डी एफ, तो ये है बी ए, सो आई विल राइट बी ए, ठीक है। और ये है आई थिंक दिस इज एंगल एफ, तो एंगल एफ के सेम कौन सी होगी, इट विल बी एंगल ए, ठीक है। तो आपको कैसे देखना है, जो यहाँ पे नेमिंग की है ना, डी ई एफ इज कॉरेस्पॉन्ड इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी सी ए, तो इसमें से यू हैव टू मेक आउट कि कौन सी साइड कौन सा एंगल किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, ठीक है, इवन इफ द फिगर इज नॉट गिवन टू यू, राइट। मूविंग फॉरवर्ड, ओके, in triangle ABC, angle A is 30, angle B is 40 and angle C is 110, ठीक है। ये measures given है ABC के and PQR के, ठीक है। Now a student says that ABC is congruent to PQR by AAA criterion, is he justified, why or why not? So अभी तक we have not studied कि एंगल कोई क्राइटेरिया है, ठीक है, या फिर मेरे पास अगर गिवन है कि तीनों एंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स विल बी इक्वल टू द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ द अदर ट्रायंगल, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। नो, व्हाई, बिकॉज ट्रायंगल्स दैट हैव सेम एंगल्स may not have same sides, ठीक है। क्या हो सकता है कि एंगल अगर तीनों सेम है, आई कैन ड्रॉ अ ट्रायंगल ऑफ दिस मच लेंथ, ठीक है, जो मेरे इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है जैसे, ठीक है, तीनों साइड 60 होती है, मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल इतने मेजर का भी बना सकती हूँ, मतलब इतना छोटा भी बना सकती हूँ, और मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है इतना बड़ा भी बना सकती हूँ, और क्या होगा, जो तीनों साइड्स जो तीनों एंगल्स है वो फिर भी 60 डिग्री ही होंगे, ठीक है। सो यू ट्राई दिस विद योर प्रोट्रैक्टर एंड योर कंपास, ठीक है, ट्राई एक्सटेंडिंग योर कंपास, सबने प्रैक्टिकल ज्योमेट्री की है, यू विल सी कि मेजर तो सेम हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है, ये 30, 40, 110 हो सकता है, ठीक है, बट जरूरी नहीं है कि जो साइड्स की लेंथ है वो सेम होगी। और मुझे क्या चाहिए, एक बार एक चीज कॉन्ग्रुएंट हो जाती है, उसके सारे एंगल सेम होने चाहिए, सारी साइड सेम होनी चाहिए, सो दैट इज नॉट हैपनिंग, सो ए इज नॉट अ कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, ओके। चलो, so now we'll move forward, just a second, okay, a little bit information for you how to install the Unacademy app, तो आपको प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों से मिल जाएगी, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसको डाउनलोड करना, अनअकैडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है आप लोगों को, ठीक है, डाउनलोड द लर्निंग ऐप टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। सो इफ यूर अ न्यू यूजर, वो आपसे कोड मांगेंगे, तो कोड है SPGSS10, ये मेरा कोड है, इस कोड को यूज करके आप ऐप पर अनलिमिटेड कंटेंट को देख सकते हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑफर यू अ वेरी बेनिफिशियल प्लस सब्सक्रिप्शन, ठीक है, इसमें यू गेट इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स, यू कैन चूज आपको किससे पढ़ना है, यू हैव इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस, बैच साइजेस और स्मॉल, सो यू कैन इजिली इंटरैक्ट एंड आस्क योर डाउट, ठीक है, बहुत सारे टेस्ट होते हैं, क्विजेस होते हैं, एंड वी हैव स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ्स, आपको सारे नोट्स प्रोवाइड होंगे पीडीएफ के फॉर्म में ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द सब्जेक्ट्स इन द कोर्स। एंड ये जो बड़ा बड़ा लिखा है SPGSS10, दिस इज माई कोड, एंड ये कोड यूज करके यू विल गेट 10% ऑफ ऑन द सब्सक्रिप्शन, ठीक है। आइकॉनिक में क्या होता है, प्लस के सारे बेनिफिट्स जो अभी मैंने आपको बताए, ठीक है, and apart from that you get a personal mentor and live doubt solution. So if you don't like studying in groups, अगर आपको individual attention चाहिए, then you can study one on one with a mentor online mode, ठीक है, and live doubt solution of course, साथ साथ आपके सारे doubts live solve होंगे, ठीक है। So plus के पैकेजेस, वी हैव डिफरेंट पैकेजेस फ्रॉम 3 months, 6 months, 12 months, इस तरह डिफरेंट पैकेजेस हैं, तो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से
You can choose that which subscription you want to buy for how many months. Again 10% off मिल जाएगा if you use my code which is SPGSS10. ठीक है, and we have it for classes 6 to 12. ठीक है, तो इफ यू नो एनीवन जो बड़ी क्लास में है, जो प्लस बेनिफिट के जो ये बेनिफिट्स अवेल करना चाहता है बड़ी क्लासेस के लिए भी, तो वो कर सकते हैं. ठीक है, एंड अगर 12 मंथ्स की बात करें, आई थिंक द पर मंथ कॉस्ट इज हार्डली 1000 रुपीज और 1100 रुपीज, एंड उसमें सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड है विच इज मच लेस देन व्हाट यू पे फॉर योर इंडिविजुअल ट्यूशंस. ठीक है, नेक्स्ट आइकॉनिक. आइकॉनिक की फी थोड़ी सी ज्यादा है, बट देन अगेन 10% ऑफ हो जाएगा इफ यू यूज द कोड SPGSS10. राइट, सो मूविंग ऑन, लास्टली वी हैव फ्री स्पेशल क्लासेस एंड फ्री टेस्ट सीरीज. कहाँ पर है, ये आपको ऐप पर मिलेंगी. ठीक है, और SPGSS10 मेरा कोड है. अगर आप न्यू यूजर है तो वो आपसे एक टाइम के लिए कोड मांगता है, तो प्लीज गिव दिस कोड टू देम. ठीक है, so that's all, and now we will resume with our topic and solve some more questions. Okay. Okay, in the figure two triangles are congruent, the corresponding parts are marked. We can write triangle RAT. This is RAT. ठीक है, ये आप देख सकते हो RAT is congruent to which triangle. ठीक है, तो मुझे corresponding parts given है. ये given है कि कौन सा एंगल किसके इक्वल है, तो मुझे नेमिंग करनी है जस्ट. ठीक है, तो RAT, तो मैं कैसे करूंगी, ट्रायंगल. अब मुझे पता है RA. ठीक है, तो RA के कॉरेस्पॉन्डिंग, RA के इक्वल कौन सी साइड है, दिस साइड. ठीक है, which is which, WO. ठीक है, अब R जो एंगल था इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल है जो सेम मेजर का है, which is W, तो मैंने लिखा W. ठीक है, RA था, देन वी हैव A के जो इक्वल कौन सा एंगल है, O ही है. ठीक है, सो वी हैव RA एंड WO. व्हाट आर वी लेफ्ट विद, N. ठीक है, so I can say that triangle RAT is congruent to triangle WON. कैसे, ठीक है, गिवन है that angle R is equal to angle W, angle A is equal to angle O and angle T, ठीक है, is equal to angle N. यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर ऐसे 3 करके बनाए हुए हैं ना, 1 2 3 is equal to N. ठीक है, सो दिस वे आई कैन से दैट आई हैव नेम्ड द ट्रायंगल्स प्रॉपर्ली. कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के साथ है, साइड्स आर कॉरेस्पॉन्डिंग टू द राइट साइड्स. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू विल नेम अ ट्रायंगल बाय लुकिंग एट द नेम ऑफ द गिवन ट्रायंगल ऑलरेडी. और अभी ये मैंने पीछे भी समझाया है, तो अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए. ठीक है, चलो, ड्रॉ रफ स्केच ऑफ टू ट्रायंगल्स सच दैट they have 5 pairs of congruent parts, but still the triangles are not congruent. Okay, so this one is actually your homework. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है. रफ स्केच ड्रॉ करने दो ट्रायंगल्स का, 5 pairs of congruent parts, but still the triangles are not congruent. We have a figure in front of you. ठीक है, इसमें मुझे कॉरेस्पॉन्डिंग जो एंगल्स है वो इक्वल गिवन नहीं है. ठीक है, जो साइड्स है, ठीक है, वो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल गिवन नहीं है. सो वी कैन स्टिल हैव इक्वल पेयर ऑफ पार्ट्स. ठीक है, बट जरूरी नहीं है कि वो कॉन्ग्रुएंट भी होंगे. दिस इज अ वेरी फन एक्टिविटी. सो दिस इज गोइंग टू बी योर होमवर्क. ट्राई ड्रॉइंग सच ट्रायंगल्स एंड लेट मी नो इफ यू वर सक्सेसफुल और नॉट. Meanwhile, let's solve some other questions. Okay, if triangle ABC and PQR are to be congruent, ठीक है, name one additional pair of corresponding parts. What criteria will you use? So just look at the figure properly, right, and tell me that what part is left, या what other part can we use. Okay, I hope you've solved it. ठीक है, तो क्या गिवन है, अब उन्होंने बोला है ए बी सी को पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट करना है. ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू एंड आर. ठीक है, सो आई ऑलरेडी हैव दैट एंगल बी. ठीक है,
एंगल बी इज इक्वल टू, कहाँ गया, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, एक एंगल मेरे पास गिवन है। देन आई ऑल्सो हैव एंगल सी, ठीक है, इज इक्वल टू एंगल आर। हाउ इट इज गिवन, यू ऑलवेज हैव टू राइट कि आप क्यों इक्वल शो कर रहे हो, क्योंकि मुझे फिगर में गिवन है। ठीक है, सो आई हैव टू एंगल्स, व्हाट डू आई नीड वन इंक्लूडेड साइड। ठीक है, तो इन दोनों एंगल्स के बीच की जो साइड है इट इज बी सी, ठीक है, एंड इधर है आर क्यू। सो आई नीड टू शो दैट बी सी इज इक्वल टू आर क्यू। तो ये जो एडिशनल चीज है ये मुझे शो करनी है, दैट साइड बी सी इज इक्वल टू साइड आर क्यू। देन आई कैन से दैट ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाय यूजिंग विच क्राइटेरिया, ASA, दैट इज एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया, क्योंकि दो एंगल के बीच में साइड इंक्लूडेड होनी चाहिए। सो दिस इज हाउ यू विल नेम देम। ठीक है, ये एंगल बी, एंगल क्यू, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। राइट, आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन. Let's move forward. Okay, by applying RHS congruence rule, state which pairs of triangles are congruent. ठीक है, तो मुझे बताना है कि नेम करना है कि कैसे कॉन्ग्रुएंट है. ठीक है, सो लेट्स फर्स्ट सी. ठीक है, मेरे पास क्या है, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी. कैसे, ये है 90 डिग्री. RHS क्या होता है, इट इज राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड साइड. अब मेरे पास यहाँ पे 90 डिग्री एंड 90 डिग्री मुझे दिख गया, क्या है, दीज आर माई राइट एंगल्स. तो इसके जो ऑपोजिट साइड होगी, विच टू ट्रायंगल्स वी हैव, ये भी तो देखिए. ठीक है, इन ट्रायंगल ACB एंड ट्रायंगल, और कौन सा है, ये हो गया ACB एंड BDA. ठीक है, इन दो ट्रायंगल्स की मैं बात कर रही हूँ. ठीक है, ये हो गया BDA एंड ACB. ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी विच इज 90 डिग्री. अब जो मैंने बताया था, जो 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड होती है वो होती है हमारे हाइपोटेन्यूज. ठीक है, तो इसमें क्या है, ए बी. ठीक है, और इसके 90 डिग्री का ऑपोजिट साइड भी मेरे पास ए बी ही है. सो ए बी इज इक्वल टू ए बी विच आई हैव गिवन इज 3.5 सेंटीमीटर. तो ये मेरे पास गिवन है, ये इक्वल है. और क्या रीजन है कि ये इक्वल है, अगर कॉमन साइड है, ठीक है, दोनों ही कॉमन साइड है, तो ऑब्वियसली उनका मेजर भी तो सेम ही होगा. ठीक है, एंड आई कैन ऑल्सो राइट कि वो कॉमन है. ठीक है, सो नाउ आई गॉट आर, मतलब राइट एंगल, आई गॉट द हाइपोटेन्यूज, और मुझे एक साइड इक्वल बतानी है, तो आई कैन से दैट ए सी इज इक्वल टू बी डी. ठीक है, जो मेरे पास गिवन है, हाउ मच, 2 सेंटीमीटर. सो नाउ आई गॉट राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड इक्वल टू ईच अदर. तो अब मैं कह सकती हूँ दैट ट्रायंगल, कैसे नेम करेंगे, पहला है, चलो हमने किया था ACB, एंगल ACB. ठीक है, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, ठीक है, BDA. अब मैं चेक कर सकती हूँ, ठीक है, कि AC साइड इज इक्वल टू BD साइड, राइट. ठीक है, CB इज इक्वल टू DA, ये हो गया CB विल बी इक्वल टू DA. ठीक है, एक बार अगर मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया ना, उसके बाद जो बची हुई साइड होती है, जो बचे हुए एंगल्स होते हैं, वो भी इक्वल हो जाते हैं. ठीक है, एंड AB इज इक्वल टू AB, ये AB विल बी इक्वल टू AB या BA. ठीक है, क्योंकि वो सेम साइड है. सो दिस इज हाउ यू विल नेम देम. सो आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन. 3 साइड्स मुझे दिखानी होती है, 3 pairs ऑफ इक्वल एंगल्स या साइड दिखाना होता है, एंड देन आई कैन से दैट द 2 ट्रायंगल्स आर congruent to each other. Okay. Show if the following triangles are congruent. तो अब मुझे इसे congruent show करना है, और मैं कैसे करूंगी. Okay. So मेरे पास given है RHS रूल लगेगा ना इस पे. ये है एंगल Q is equal to एंगल E which is equal to 90 डिग्री. ठीक है, चलो राइट एंगल तो इक्वल हो गया. अब हाइपोटेन्यूज क्या होता है, द साइड विच इज ऑपोजिट टू द राइट एंगल. सो आई कैन से दैट PR इज इक्वल टू DF इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. ये दोनों चीजें मेरे पास गिवन है क्वेश्चन में. नाउ आई नीड की जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड होनी चाहिए इक्वल होनी चाहिए. ठीक है, वन कॉरेस्पॉन्डिंग साइड शुड बी इक्वल. बट अब मेरा ट्रायंगल क्या बनेगा, ट्रायंगल है PQR. ठीक है, PQR शुड बी. ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग कैसे होना चाहिए, इसको नेमिंग कैसे करूंगी,
ई एफ, ठीक है। कैसे, डी एफ जो था, ठीक है, और जो पी आर था दोनों सेम होने चाहिए, दैट वी हैव। बट क्या और क्या चाहिए था, आई नीडेड दैट पी क्यू शुड बी इक्वल टू डी एफ। सो इज पी क्यू इक्वल टू डी एफ, एंड मेरे पास क्यू आर और ई एफ का तो मेजर गिवन ही नहीं है, ठीक है। सो वी नो दैट पी क्यू इज नॉट इक्वल टू डी ई। तो जो मेरा आर एच एस का क्राइटेरिया है, जो साइड है वो मुझे इक्वल नहीं मिल रही। सो दीज टू ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, ठीक है। क्या और कोई रूल यूज कर सकते हैं? नो, वी कांट यूज एनी अदर रूल, क्योंकि हमारे पास ना दो पेयर ऑफ साइड्स इक्वल है, ना दो पेयर ऑफ एंगल्स इक्वल है, आर एच एस भी नहीं लग रहा है, एंड वी कांट इवन यूज एच एस 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 क्राइटेरिया, राइट। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, सो शो इफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब इसमें देखते हैं कैन वी शो इट। सो 90 डिग्री है, तो आई विल ट्राई द आर एच एस क्राइटेरिया, ट्राई करती हूँ मैं, ठीक है। I know that angle B is equal to angle D. Why? Because they are 90 degree and it is given in the question. Okay, then I have to check for the hypotenuse, which is the side opposite to the 90 degree. तो दोनों ही ट्रायंगल्स में CA is equal to CA, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये कॉमन साइड है, ठीक है, दोनों ही सेम है, तो ऑब्वियसली इक्वल लेंथ की होंगी। अब मुझे क्या चाहिए, एक साइड चाहिए, तो आई कैन सी दैट BA is equal to DA is equal to how much, 3.6 सेंटीमीटर, हाउ इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो मेरे को राइट एंगल मिल गया, हाइपोटेन्यूज मिल गया, एंड साइड मिल गई। सो आई विल से दैट ट्रायंगल, अब इनको नेम कैसे करना है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट से करना है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, यहां से क्या होगा, ADC, ठीक है, ADC। तो आप देख सकते हो दैट AB इज इक्वल टू AD, ठीक है, BC इज इक्वल टू DC, राइट। तो मतलब मैंने ठीक नेमिंग की है, एंड AC इज इक्वल टू AC over here because it's common. So yes, the two triangles are congruent using the RHS criteria. Okay, just a second. So I hope you all are solving it along with me, ठीक है, it's very important for your practice also. And moving forward, okay, इट इज टू बी स्टैब्लिश्ड बाय RHS कॉन्ग्रुएंस। तो उन्होंने हमें दिया हुआ है कि कौन सा रूल यूज करना है, मुझे RHS कॉन्ग्रुएंस रूल यूज करना है। दैट ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल RPQ. What additional information is needed if it is given that angle B is equal to angle P? ठीक है, क्या गिवन है, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल RPQ। अब उन्होंने दिया है दैट एंगल B इज इक्वल टू एंगल P, दोनों 90 डिग्री है, ठीक है, एंड AB इज इक्वल टू RB, AB इज इक्वल टू RP, ठीक है। तो क्या मैं इसको विजुअलाइज कर सकती हूँ एक मिनट के लिए? मुझे पता है 90 डिग्री कहाँ पे, B पे है, ABC, ठीक है, एंड दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, और कहाँ पे है, P पे 90 डिग्री, ठीक है। तो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, एंड आई नो दैट AB इज इक्वल टू RP, तो मैं इसको RPQ नेम कर सकती हूँ। नाउ आई हैव दिस इक्वल, ठीक है, AB is equal to RP. What I still need is the hypotenuse should be equal to each other. तो additional pair क्या चाहिए मुझे, that AC becomes equal to RQ. क्यों? क्योंकि ये मेरा hypotenuse है, hypotenuse is the longest side and opposite to 90 degree. So if I can show that AC is equal to RQ, तब मैं कह सकती हूँ that these two triangles are congruent. So what additional information was needed? वो था कि AC और RQ भी इक्वल होने चाहिए, और देखो नेमिंग में भी वो एकदम कॉरेस्पॉन्डिंग है, AC और RQ, राइट। सो इजी क्वेश्चंस, आई होप अभी तक सबको समझ आ रहा है, ठीक है। एंड इफ नॉट देन यू कैन सी द ओल्डर वीडियोज जिसमें इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। ओके, प्लीज रीड द क्वेश्चन एंड देन वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस वन। मे बी इवन माई थ्रोट हैज स्टार्टेड ईकिंग, हाँ, रिकॉर्ड करते हुए यू हैव टू स्पीक continuously. So I hope you've read the question. In figure
BD and CE are altitudes of triangle ABC. तो ऑल्टीट्यूड क्या होता है? ऑल्टीट्यूड इज द हाइट ऑफ द ट्राइंगल जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है विद द ऑपोजिट साइड. ठीक है, तो BD और AC अगर CE अगर ऑल्टीट्यूड्स है मतलब ऑब्वियसली वो ऑपोजिट साइड पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी. ठीक है, such that BD is equal to CE. ठीक है, BD over here, right, is equal to CE over here. ठीक है, state the three pairs of equal parts in triangle CBD and BCE. तो CBD and BCE. Okay. Is triangle CBD congruent to BCE? Why or why not? Is triangle DCB is equal to EBC? Okay, one I am going to do for you and one is your homework. So let's start with the first part. अब मुझे दिखाना है कि ये congruent है कि नहीं. So I can try the RHS rule. ठीक है, okay. तो सबसे पहले what do I have? I have angle E. ठीक है, इसको ठीक से नेम करते हैं बिकॉज इट्स नॉट द होल एंगल ई. बी एंगल BEC, ठीक है, इज इक्वल टू एंगल CD एंड B. ठीक है, ऐसे हो जाएगा ना, BEC एंड CDB के इक्वल है विच इज इक्वल टू 90 डिग्री विच आई एम गिवन बिकॉज दीज आर द ऑल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्रायंगल. ठीक है, और क्या गिवन है? दैट BD इज इक्वल टू CE. तो ये जो मेरा BD है साइड इज इक्वल टू द CE साइड. इट इज ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन. अब मेरे को एक और साइड प्रूव करनी है विच इज माई हाइपोटेन्यूज प्रूव करना है मुझे कि वो इक्वल है कि नहीं. तो अगर ये 90 डिग्री है, इसके ऑपोजिट कौन सी साइड है? BC. और यहाँ पे भी 90 डिग्री है, इसके ऑपोजिट भी BC है. सो आई विल से दैट BC इज इक्वल टू BC. क्यों? बिकॉज इट इज कॉमन साइड है तो इक्वल मेजर ही होगा. सो आई गॉट अ राइट एंगल इक्वल. ठीक है, एक साइड इक्वल मिल गई मुझे एंड क्या मिल गया? आई ऑल्सो गॉट द हाइपोटेन्यूज इक्वल टू ईच अदर. सो येस, आई कैन से दैट ट्रायंगल CBD is congruent to triangle BCE. Why? Because using the RHS criteria. ठीक है, सेकेंड है DCB. ठीक है, एंड EBC. ये कॉन्ग्रुएंट होंगे कि नहीं होंगे? ठीक है, सेम ट्राइंगल्स, वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम टू ट्राइंगल्स. जस्ट हमने क्या किया है? वी हैव चेंज्ड द द ऑर्डर ऑफ द नेमिंग वी हैव चेंज. ठीक है, तो क्या देखो, DC इज इक्वल टू EB है कि नहीं? ठीक है, बताओ, DC और EB इक्वल है? यस, EB एंड DC विल बी इक्वल क्योंकि जो हमने ट्राइंगल्स यहाँ कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए हैं, एक बार कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सारे पार्ट्स ही इक्वल होते हैं, सारी तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं. सो दिस विल ऑल्सो बी ट्रू, राइट? चलो, मूविंग फॉरवर्ड. ABC is an isosceles triangle. ठीक है, just a second. हाँ, तो क्या है? ABC is an isosceles triangle with AB is equal to AC and AD is one of its altitudes. ठीक है, ये क्या है? These are altitudes. State the three pairs of equal parts in ADB and ADC. ठीक है, so क्या लिखूंगी? In triangle ADB and triangle ADC. अब मुझे थ्री पेयर्स ऑफ इक्वल पार्ट्स गिवन है, दो तो मेरे को पता ही है दैट AB इज इक्वल टू AC बिकॉज इट्स गिवन इन द क्वेश्चन. ठीक है, देन AD इज इक्वल टू AD. वाई? बिकॉज इट इज द कॉमन साइड. ठीक है, ये कॉमन साइड हो गई. एंड और क्या है? आई नीड वन मोर पेयर इक्वल. ठीक है, नाउ व्हाट विल दैट बी? दैट विल बी दैट एंगल अच्छा ठीक है, हाँ, एंगल ADB विल बी इक्वल टू एंगल ADC विच इज इक्वल टू 90 डिग्री राइट ओवर हियर. ये 90 डिग्री दिख रहा है ना तुम्हें? दोनों 90 डिग्री है. सो दीज बोथ आर ऑल्सो इक्वल.
ठीक है, क्योंकि वैसे ही ऑल्टीट्यूड है तो 90 डिग्री ऑन ईच साइड होगा, ठीक है। सो नाउ व्हाट डू आई हैव अ राइट एंगल, ठीक है, इसके ऑपोजिट की जो साइड्स हैं दोनों साइड, दैट इज माई हाइपोटेन्यूज एंड ऑल्सो वन ऑफ द साइड्स, इस केस में कौन सी है, परपेंडिकुलर साइड, दैट इज AD, बिकॉज दीज आर कॉमन, ठीक है, AD इज इक्वल टू AD बिकॉज दे आर कॉमन, तो मुझे एक साइड भी मिल गई। सो बाय यूजिंग विच क्राइटेरिया, बाय यूजिंग RHS criteria, these two are equal to each other, ठीक है। Okay, so first part we have answered that yes, they are congruent to each other. Is angle B is equal to angle C? Yes, angle B will be equal to angle C because एक बार हमने congruent proof कर दिया, then we use the CPCT rule that congruent corresponding parts of congruent triangles are equal. तो B और C कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं, जब मैं उनको ओवरलैप करूंगी, जब मैं इस ट्रायंगल ओवर फोल्ड करती हूँ, एंगल B विल बी ऑन एंगल C, तो वो वैसे ही कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, तो यस दे आर इक्वल। तो BD, ठीक है, इज इक्वल टू DC, यस, बाय द सेम रूल, दैट इज कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो एक बार दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो सब कुछ ही सेम है, ठीक है। चलो, ओके, शो इफ द फॉलोइंग ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। सो हमारे पास क्या है, ट्रायंगल AEB, ठीक है, एंड वी हैव ट्रायंगल AEB एंड CDB। तो मुझे दिखाना है कि ये कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है। सो हाउ कैन आई शो दैट? ओके, सो इट इज वेरी इजी, गिवन है दैट EB इज इक्वल टू DB, ठीक है, ये EB है, ये DB है और ये इक्वल है, इट इज गिवन टू मी, एंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री विच इज ऑल्सो गिवन टू मी, ठीक है। अब मेरे पास एक राइट एंगल इक्वल हो गया है, ठीक है, हाइपोटेन्यूज इक्वल हो गए हैं, एंड मुझे एक साइड ही चाहिए, तो साइड क्या है, EA इज इक्वल टू BC, ठीक है, EA इज इक्वल टू BC। कैसे, ये वाली देखो, ये है EA और ये है BC, नॉट दिस वन, DC नहीं है, इट इज BC, सो हाउ इज इट इक्वल, इट इज ऑल्सो गिवन टू मी, ठीक है। तो मैं इसको कैसे नेम करूंगी, नाउ आई विल से दैट ट्रायंगल, ठीक है, सबसे पहले हम लिख रहे हैं कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स लिखते हैं A, B और E, ठीक है, A, B और E, ठीक है। अब AB की इक्वल कौन सी साइड होगी, जौन सी बची हुई है, ठीक है, ये वाली बची हुई है ना, सो आई विल राइट इज कॉन्ग्रुएंट टू C, D एंड B, ठीक है। अब आप देख सकते हो AB विल बी इक्वल टू CD, BE इज ऑलरेडी इक्वल टू DB, ठीक है, एंड AE, दिस AE इज इक्वल टू CB, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू विल नेम। तो नेमिंग में गलती मत करना क्योंकि ट्रायंगल्स एकदम तुम्हें थोड़े से उल्टे करके गिवन है। सो दिस इज हाउ यू विल शो दिस इज कॉन्ग्रुएंट बाय विच रूल, बाय राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड वाला क्राइटेरिया, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। ओके, show that triangles AMP and triangle AMQ are congruent, ठीक है, another NCERT question. Okay, AMP, ठीक है, तो पहले मैं लिखूंगी इन ट्रायंगल AMP and triangle AMQ, AMP and AMQ. So what do we have, that PM इज इक्वल टू MQ, क्यों, क्योंकि मेरे पास गिवन है कि ये दोनों साइड्स जो है मेरी बिल्कुल इक्वल है, ठीक है। देन वी हैव एंगल PMA, ठीक है, ये वाला एंगल PMA, ठीक है, इज इक्वल टू एंगल QMA, ठीक है, ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है, इट इज गिवन टू मी, सो आई अगेन राइट दैट इट इज गिवन। So what do I have? I have a side, I have an angle, and what do I need? Another side जिनके बीच में ये angle included हो. So I will write that AM is equal to AM because it is the common side. ठीक है? So now what do I get? I get एक side, ठीक है, एक angle, ठीक है, ये right angle is just an angle, and फिर एक और side. So by using which criteria? SAS rule, triangle AMP is congruent to triangle AMQ.
So this is how you will prove it congruent to each other. So always naming का ध्यान रखना है, and then you have to use any criteria to prove it equal, right? चलो, some extra questions. Show if the following triangles are congruent. चलो देखते हैं. What do we have? We have in triangle, ठीक है, AEB and triangle CAEB किया था ना हमने, हाँ, तो ठीक है, CED, ठीक है. इन दोनों को अब मुझे बताने की कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है. तो आई कैन सी दैट AB इज इक्वल टू DC, ठीक है. हाउ आई एम गिवन दैट द साइड AB, ठीक है, इज इक्वल टू साइड DC, ठीक है. और क्या गिवन है? आई ऑल्सो हैव दैट एंगल A, ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट? एंगल C. इट इज ऑल्सो गिवन, ठीक है. ये रहा एंगल C और ये रहा एंगल A और एंगल C. अब मुझे क्या चाहिए? आई ऑलरेडी हैव वन साइड, ठीक है, आई ऑलरेडी हैव वन एंगल, ठीक है. सो आई नीड अनदर साइड चाहिए ना मुझे, राइट? एक इंक्लूडेड साइड चाहिए, वो कैसे आएगी? ठीक है. सो नाउ दिस, कैन आई से दैट एंगल, इधर देखो, एंगल AEB इज इक्वल टू एंगल CED. क्यों इक्वल क्यों होंगे? बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है. आई हैव दिस एंगल एंड दिस एंगल इक्वल, ये वाले दो एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, ठीक है. तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? बिकॉज यूजिंग द एंगल सम प्रॉपर्टी, अगर दो एंगल्स ऑलरेडी इक्वल हैं दो ट्राइंगल्स के, तो ये जो एंगल B है इट विल ऑल्सो बी ऑटोमेटिकली इक्वल टू एंगल D, जो मैंने बताया था AAS क्राइटेरिया होता है, ठीक है. तो वैसे मेरे पास क्या आ रहा था? AAS क्राइटेरिया आ रहा था. आई प्रेफर कि ASA क्राइटेरिया ही यूज करें. तो आई विल राइट दैट नाउ एंगल B विल बी इक्वल टू एंगल D, ठीक है. कैसे? यूजिंग द एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है. उससे पहले यू हैव टू शो, ठीक है, कि तुमने वर्टिकली ऑपोजिट एंगल शो किए, इसकी वजह से एंगल B इज इक्वल टू एंगल D आया है, ठीक है. सो दिस इज अनदर एंगल. अब मेरे पास एंगल्स हैं दो, ठीक है, एंगल A एंड एंगल B, और इधर है एंगल D और एंगल C. अब इनके बीच की जो साइड्स हैं दैट इज AB एंड DC, ठीक है. AB और DC जो है वो ऑलरेडी इक्वल हो गई हैं. सो बाय यूजिंग ASA criteria, दो angles and included side, I can say that triangle AEB is congruent to triangle CE and D, ठीक है. I hope it's clear to everyone. सबसे पहले मैंने vertically opposite angles prove किए, ठीक है. पता है ना lines and angles का चैप्टर, सॉरी, lines and angles का चैप्टर किया हुआ है. तो जब भी दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, जो ये जो ऑपोजिट पेयर्स बनते हैं ये इक्वल होते हैं. ये इसकी इक्वल होता है और ये इसकी इक्वल होता है, ठीक है. दीज आर कॉल्ड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. ओके. प्रूव दैट द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर. सो आई कैन इजीली सी, पहले तो क्राइटेरिया कौन सा लगेगा? इट विल बी SAS क्राइटेरिया, ठीक है. दो साइड्स है, आई कैन से दैट PQ, ठीक है, इज इक्वल टू TU साइड विच इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ठीक है. देन I have QR is equal to US which is equal to 5.5 सेंटीमीटर, और इनके बीच का जो इंक्लूडेड एंगल है दैट आई हैव एंगल Q is equal to एंगल U which is equal to 40 डिग्री. तो ये तीनों चीजें मेरे को गिवन है. तो क्राइटेरिया कौन सा लगेगा? SAS क्राइटेरिया लगेगा, ठीक है. सो आई कैन से दैट ट्रायंगल PQR, ठीक है, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल TUS, राइट. आप नेमिंग चेक कर सकते हो, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ही आएंगे. सो यूजिंग द SAS क्राइटेरिया, टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल. ओके. टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम, ठीक है. दो सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? जब उनका सेम रेडियस है. यस, व्हेन दे हैव द सेम डायमीटर, सेम सर्कमफरेंस, या ऑल ऑफ दीज, ठीक है. सो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज, ठीक है. क्योंकि अगर रेडियस सेम है, इफ दोनों का रेडियस ही 2 है, ठीक है, तो डायमीटर दोनों का ही 4 होगा, ठीक है. और जो दोनों का सर्कमफरेंस है, सर्कमफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज 2 पाई r
और पाई डी, ठीक है, वो दोनों भी सेम ही आएगा, ठीक है। द आंसर विल बी सेम इन बोथ द केसेस, क्योंकि रेडियस भी सेम है, डायमीटर भी सेम है, तो सर्कमफ्रेंस का आंसर भी एकदम सेम आएगा। सो इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। जस्ट अ सेकेंड। Okay, so let's continue. Now we will do one more question and I think that's enough practice for today. ठीक है, तुम्हें आई होप यूज करने आ गए कि सारे जो क्राइटेरियाज हमें कैसे यूज करने हैं, ठीक है। स्टेट द पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है। तो मेरे पास क्या क्या इक्वल है, आई ऑलरेडी हैव दैट पी क्यू इज इक्वल टू आर एस, क्यों, दोनों 3.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। देन एंगल क्यू पी आर, ठीक है, ये हो गया ना, क्यू पी आर इज इक्वल टू एंगल एस आर पी, कैसे, ये भी है 30 डिग्री, ठीक है। नाउ अनदर चीज जो मेरे पास होगी दैट इज पी आर इज इक्वल टू पी आर, क्यों, बिकॉज दे आर कॉमन साइड है ये, ठीक है, ये बिल्कुल कॉमन है, सो ये कॉमन हो जाएगी। सो आई ऑलरेडी हैव वन साइड, ठीक है, दैट इज पी क्यू एंड एस आर, ठीक है। फिर आई हैव एन इंक्लूडेड एंगल एंड अनदर साइड, सो by using SAS criteria the two triangles are congruent to each other, ठीक है। ट्राइंगल्स कौन से हैं, ट्राइंगल PQR is congruent to triangle, यस है ना, PQR, तो हम बोलेंगे RSP, ठीक है। So you can see that SP will be equal to QR over here, PQ will be equal to RS and RQ will be PR will be equal to RP, ठीक है, इस तरह से, क्योंकि ये कॉमन है। So this is how you will name them. I hope all the 4 main criterions are clear to you, ठीक है। I hope आपको कोई डाउट नहीं है, अगर कोई डाउट आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं and I will solve it maybe in the next class when we are live or just give you the answer there, ठीक है। So I hope you like the session. अभी एग्जाम्स आ रहे हैं तो अच्छे से पढ़ो, ठीक है, बोर नहीं होना है तुम लोगों ने, मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो एंड इवन इफ यू आर डूइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन, डोंट डू थिंक दैट यू आर गेटिंग बोर्ड, ठीक है। द मोर द प्रैक्टिस मोर द मार्क्स, ओके। सो आई विल सी यू सून एंड तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड कीप प्रैक्टिसिंग, ओके। सो थैंक यू सो मच, आई विल सी यू सून।